अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, you are watching your favorite program Iqra, and I am your host Dr. Jameel Rathod. In this particular religious Quranic program, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format and discipline of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 74 to 78 of Surah Al-Mu'min of the 24th part of Al-Quran. And as usual, you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, when Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. صدق الله العظيم. Dear viewers, you are listening the holy verses of Al-Quran, and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran.
كذلك يضل الله الكافرين يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our program, because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen. And then we translated or romanized these verses, particularly for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise is followed by Urdu and English translation. And in the end, we also give you the brief explanation of these holy verses of Al-Quran. So this is very important segment, because in which we give you translations, recitations, as well as explanations of the Holy Quran. So keep on watching this program and stay with us. كذلك يضل الله الكافرين. كذلك يضل الله الكافرين. In Urdu, इसी तरह अल्लाह गुमराह रखता है काफिरों को. In English, thus Allah leads astray the infidels. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون.
ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ. In Urdu, ये सज़ा और रुसवाई बदला है उसका कि तुम खुशियां मनाया करते थे ज़मीन में अपने आरज़ी इक़्तिदार पर नाहक, और बदला है उसका जो तुम अपने फ़ानी अमवाल व इमलाक पर इतराया करते थे. In English, this is because you rejoiced in the earth without right and because you behaved boastfully. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. In Roman, ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. In Urdu, अब दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाज़ों में, तुम वहाँ हमेशा रहने वाले हो, बस ये बहुत बुरा ठिकाना है तकब्बुर और गुरूर करने वालों का. Enter the gates of hell to remain therein forever, and what an evil abode of the proud. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. In Urdu, ए हबीब, आप उनकी नाजेबा हरकतों पर सब्र फरमाइए, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, सो हम खा आपको दिखाएं उस अजाब का कुछ हिस्सा जिसका उनसे हमने वादा किया है, या इससे पहले ही आपको दुनिया से उठा लें, ये बच नहीं सकते, आखिरकार हमारी ही तरफ लौटाए जाएंगे. In English, so be you patient, no doubt the promise of Allah is true. Then, whether we let you see something of what we have promised them, or we cause you to die before, in any case, they are to return to us. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. In Urdu, और हमने भेजे थे पैगंबर आपसे पहले भी, उनमें से बाज़ का जिक्र हमने आपसे कर दिया और उनमें से बाज़ का जिक्र कुरान करीम में आपसे नहीं किया. In English, and undoubtedly we sent many messengers before you. Of them, there are some whose story we have narrated to you, and there are some whose story we have not narrated to you. وما كان لرسول
वमा कान लिरसूलिन अन यअतिय बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। इन उर्दू, और किसी रसूल की मजाल न थी कि वो ले आता कोई निशानी अल्लाह की इजाज़त के बगैर। And it is not for any messenger that he should bring any sign without Allah's permission. नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला इन आयात में अपनी आज़मतों को बयान फरमा रहा है कि वही है जो ज़िंदा करता है, मारता है। बत्न मादर में किस तरह एक ड्रॉप ऑफ क्लॉट से, ब्लड से अल्लाह इंसान को नशोनुमा करता है। ये सारी आज़मतें बयान करने के बाद अब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है तो फिर इबादत के लायक तो वही ज़ात है जो इंसान को आदम से वजूद में लाती है, और फिर वजूद भी एक बिल्कुल ड्रॉप लाइक वजूद है, और फिर उससे अल्लाह किस तरह हड्डियाँ बनाता है, किस तरह गोश्त चढ़ाता है, किस तरह शक्ल व शबाहत बनाता है। तो जब इतना अजीम हमारा खालिक है तो इबादत के लायक वही है, इबादत उसी की जानी चाहिए। अगर कोई नहीं करेगा तो फिर यहाँ पर डर सुनाया जा रहा है कि जिस तरह पिछली अक़वाम को हलाक किया गया, अल्लाह हलाक भी कर दिया करता है। और फिर इस दुनिया में सबको मरना है। बड़े बड़े सलातीन, बड़े बड़े फ़ातिहीन, बड़े बड़े ज़ालिमीन जिन शहरों से गुज़र जाया करते थे, तख्त व ताराज कर दिया करते थे, लेकिन दुनिया ने देखा कि सिकंदर भी आया, दारा भी आया, नपोलियन भी आया, हिटलर भी आया, और आज के कल के फ़िरऔन और नमरूद भी आए, आज के फ़िरऔन और नमरूद भी मौजूद हैं। जब मरते हैं उनका क़िस्सा ख़त्म हो जाता है। अल्लाह फरमाता है फिर उन्हें शोलों में डाल दिया जाएगा, उन्हें फिर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और फिर इसके बाद बताया फ़लबिअस मस्वल मुतकब्बिरीन, और ख़ास तौर पर तकब्बुर करने वाले तो हमेशा जन्नत में रहेंगे। और ये तकब्बुर कब किया करता है इंसान? आम तौर पर हम देखते हैं कि अल्लाह अगर किसी को कोई ऐसी नेमत दे दिया करता है कि जिस नेमत को पाकर वो दूसरों में मुमताज़ हो जाए, तो इंसान को तकब्बुर आ जाया करता है। शैतान ने भी सबसे पहले नबी के मुकाबिल तकब्बुर किया था। अल्लाह ने फरमाया कि अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन, तूने तकब्बुर किया, जा तो काफिरों में से हो गया है। चुनांचे अभी तकब्बुर, अल्लाह ने उसे भी नेमत दी थी, मुतकब्बिर हो गया। किसी को हुस्न की दौलत मिल जाती है वो मुतकब्बिर हो जाता है, किसी को दौलत मिल जाती है वो तकब्बुर करता है, किसी को बादशाहत मिल जाती है वो तकब्बुर करता है। और नतीजतन बहुत सी ऐसे मजालिम जो वो दूसरों पर ढाता है वो उसे नज़र नहीं आया करते। नतीजतन अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मुतकब्बिरीन, गुरूर करने वालों की सफ़ों में शामिल कर देता है, और गुरूर करने वाले हमेशा जहन्नम में रहा करते हैं। और यही तकब्बुर है जो एक तरफ तो इंसान को उसकी आँखों पर गिलाफ पट्टी लगा दिया करता है, दूसरी तरफ उसकी ख्वाहिशात को भी उभारता है। जब उसे ये पता चल जाए कि उसे रोकने वाला कोई नहीं है, अब वो बादशाह बन चुका है, तो फिर वो जब चाहे जिसको चाहे मार दिया करता है, और नतीजतन उसका जुल्म उसका नाम एमाल में लिखा जाता रहता है। आज भी अगर हम अगर दुनिया को एक सरसरी निगाह से देखें तो जिन लोगों के पास ताकत है, जिन लोगों के पास दौलत है, हम देखते हैं कि वो अपनी सल्तनत, अपनी सरहदें बढ़ाने के फ़िक्र और तगोदो में रहते हैं। उनकी ख्वाहिश ये होती है कि जनाब यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाए और हम उसके तने तनहा बादशाह और हाकिम बन जाए। जिसको कहें उसको दहशतगर्द है, जिसको कहें जालिम करार दे दें, जिसको चाहे मजलूम करार दे दें। और हमारा आलम तो ये है कि हमें मारा जाता है, रोने नहीं दिया जाता। बेटे को मारा जा रहा है और गोली की कीमत बाप से वसूल की जा रही है। तो ये जुल्म, ये बर्बरियत इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसको पसंद नहीं किया करता। और एक वक्त आता है ये सारे ज़ालिमीन ख़त्म हो जाया करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ का बोलबाला किया करता है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला फिर से मुसलमानों को एक अज़ीम क़ुव्वत की सूरत इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खलक़ल इंसान